Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. In today's lecture, we will discuss Section 295 to Section 298 of Indian Penal Code, which is relating to offense against religion. So, offense relating to religion we will discuss under this particular lecture. तो आज हम सेक्शन 295 से लेके सेक्शन 298 जो डील करता है अगर कोई रिलीजन के अगेंस्ट में ऑफेंस होता है या रिलीजन को लेकर कोई ऑफेंस होता है तो उसके प्रोविजंस क्या है आईपीसी में, पनिशमेंट क्या होगी, ये सब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करने की और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर उस पर पूछ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन भी डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offences relating to religion. So section 295 of Indian Penal Code deals with injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class. Section 295. So whoever destroys, damage or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person with the intention of thereby insulting the religion of any class of person. So any person who destroys, who damage or who defiles any place of worship or any object which may be used by any person for any sacred purpose, and the intention behind such a damage and destruction is to insult the religion of any class of person. तो अगर कोई पर्सन किसी रिलीजन को इंसल्ट करने के हिसाब से, किसी रिलीजन की इंसल्ट करने के हिसाब से या किसी क्लास ऑफ पर्सन को की इंसल्ट करने के हिसाब से किसी के प्लेस ऑफ वर्शिप को अगर डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसको इम्प्योर करता है, गंदा करता है, जो कि उस क्लास ऑफ पर्सन, उस रिलीजन के लोग उस प्लेस ऑफ वर्शिप को एज ए सेक्रेट, एक रिलीजियस पाक चीज मानते हैं, अगर उसको वो गंदा करता है, उसको वो डैमेज करता है कोई पर्सन या उसको डिस्ट्रॉय करता है, or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, और ये पर्सन को पता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो डैमेज है या जो इसको इम्प्योर किया जा रहा है, ये उन लोगों की और उस रिलीजन की इंसल्ट होगी। अगर ये नॉलेज रखते हुए अगर पर्सन डिस्ट्रक्ट करता है, डैमेज करता है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को, तो उस सिचुएशन में such person shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both. So such person is liable to face a punishment and that imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both. तो ऐसा पर्सन जो किसी की रिलीजियस प्लेस को उसको इंसल्ट करने के हिसाब से डैमेज, डिस्ट्रॉय या गंदा करता है, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 295 में 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 295A, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief. Section 295A. So whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizen of India by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise insult or attempt to insult the religion or the religious belief of that particular class. So any person who deliberately and with an ill intention injure the religious feelings of any class of citizen of India, whether it may be by words either spoken or written or by signs or by any representation, and that particular intention, that particular injuring the religious feeling with an attempt to insult the religion or the religious belief of that particular class. तो कोई पर्सन इल इंटेंशन से या डेलिबरेटली ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे किसी पर्सन के रिलीजियस फीलिंग इंजोर होती है, रिलीजियस फीलिंग हर्ट होती है, वो चाहे बाय वर्ड्स कुछ कहे, यानी कुछ बोलकर अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग को वो इंजोर करता है, लिखकर रिलीजियस फीलिंग को अगर इंजोर करता है, या कोई आर्टिकल लिख लिया जिसके वजह से किसी
क्लास ऑफ पर्सन की ये रिलीजियस फीलिंग अगर हर्ट होती है, अगर उसकी धार्मिक भावना अगर दुखती है किसी के आर्टिकल के वजह से, किसी के कुछ बोलने के वजह से, या किसी के कुछ साइन करने की वजह से, यानी साइन में इशारों में अगर कोई कुछ बोलता है जिसके वजह से किसी की धार्मिक भावना अगर दुखती है, या अपने रिप्रेजेंटेशन के चलते किसी के धर्म को इंसल्ट करता है, या किसी की रिलीजियस फीलिंग को इंज्योर करता है, इस सिचुएशन में क्या होगा? Such person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो ऐसे पर्सन को 3 साल तक की सजा या और फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 295A। सेक्शन 296, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। Disturbing religious assembly. So whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies. So if any person who wrongfully and voluntarily causes any disturbance to any assembly which is lawfully engaged, and that particular assembly is engaged for the purpose of performance of any religious worship or any religious ceremonies. So ऐसी कोई assembly जो कोई religious ceremonies या religious worship, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई रिलीजियस सेरेमनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई गैदरिंग है, रिलीजियस गैदरिंग, और वो असेंबली को अगर कोई पर्सन वॉलंटरीली डिस्टर्ब करता है, ऐसी असेंबली को, रिलीजियस असेंबली को कोई वॉलंटरीली अगर उसको डिस्टर्ब करता है, सच पर्सन शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. तो ऐसे पर्सन को जो किसी रिलीजियस असेंबली जो लॉफुली इंगेज की गई है, जो लॉफुली रिलीजियस असेंबली निकाली गई है, रिलीजियस जुलूस, धार्मिक जुलूस अगर निकाला गया है लॉफुली विथ परमिशन, और ऐसे जुलूस को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो जो डिस्टर्ब करेगा उसको 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। So, and that offense is a cognizable one, non-bailable one, and triable by any magistrate, and this is a non-compoundable offense. Section 297, trespassing on burial places. So, whoever with intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person or with such knowledge. So, if any person with an intention to insult a religion, insult the feeling of any person, injure the feeling of any person, or with such knowledge commits any trespass in any place of worship or any place of sculpture or any place set apart from the performance of funeral rites or as a depository for the remains or the dead, or offers any indignity to any human corpse or causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremonies. तो कोई भी पर्सन जो किसी की रिलीजियस फीलिंग को अगर इंजोर करता है, उसके रिलीजन की इंसल्ट करता है, और इसी नॉलेज के साथ अगर वो ट्रेसपास करता है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर वो प्लेस ऑफ वर्शिप पे किसी की रिलीजियस फीलिंग को इंजोर करने के लिए अगर वो ट्रेसपास करता है, वो वहां पर इंटर होता है, चाहे वो प्लेस ऑफ वर्शिप हो या प्लेस ऑफ स्कल्पचर हो जहां पर आइडल वगैरह रखे हुए हो, और एनी प्लेस सेट अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स, और एक आधी ऐसी प्लेस है कि जहां पर फ्यूनरल अंतविधि की अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अंतविधि की कोई प्रोसेस वहां पर होता होगा, फ्यूनरल राइट्स जहां पर निभाए जाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम जिसको शमशान भूमि भी कहेंगे, कब्रिस्तान कहेंगे, तो ऐसी जगह पर अगर कोई पर्सन इंटर होता है इस भावना से कि उस रिलीजन के पर्सन की फीलिंग्स को इंजोर करे, और एज अ डिपोजिटरी फॉर द रिमेन्स और द बॉडी, और अगर ऐसी कोई प्लेस है जो बॉडीज को रखने के लिए यूज होती है, तो वो प्लेस पे भी अगर उस रिलीजन को इंजोर करने के हिसाब से इंटर होता है, और ऑफर्स एनी इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स, या ऐसा कोई एक्ट करता है जिसके वजह से जो डेड बॉडी है उसकी मतलब उसकी अवहेलना हो,
ऐसे एक्ट से भी, और कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी पर्सन असेंबल्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल सेरेमनीज, या अगर जो फ्यूनरल सेरेमनीज के लिए, अंतविधि के लिए जो पर्सन वहां पर जमा हुए हैं उनको डिस्टर्ब करने की अगर कोई कोशिश करेगा वहां पर इंटर होकर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। तो जो कोई भी ट्रेसपास करेगा प्लेस ऑफ वर्शिप पे या शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में या जहां पर अंतविधि हो रही है वहां पर, तो उस पर्सन को सेक्शन 297 में पनिशमेंट होगी 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट और नॉन कंपाउंडेबल है। सेक्शन 298, uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person. So whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any words or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or place any object in the sight of that person shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both. So whoever with deliberate intention of wounding the religious feeling of any person, अगर कोई deliberately किसी के religious feeling को दुखाने के लिए, किसी की रिलीजियस फीलिंग को इंज्योर करने के लिए डेलिबरेट इंटेंशन के साथ, इफ ही अटर्स एनी वर्ड्स, अगर वो कुछ बोलता है किसी की रिलीजियस फीलिंग को दुखाने के लिए, इंज्योर करने के लिए, और मेक्स एनी साउंड, या ऐसा कोई साउंड करता है जिससे किसी की रिलीजियस फीलिंग इंज्योर हो, और एनी साउंड इन द हियरिंग ऑफ दैट पर्सन, और मेक्स एनी जेस्चर, या कोई इशारा करता है जिस इशारा की वजह से किसी पर्सन की रिलीजियस फीलिंग अगर इंज्योर होती है, इन द साइट ऑफ दैट पर्सन और प्लेसेस और एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both. तो जो कोई भी किसी की रिलीजियस फीलिंग को दुखाने के लिए डेलिबरेटली, इंटेंशनली अगर कुछ कहता है वर्ड से, या कुछ ऐसा साउंड निकालता है, या कोई ऐसे जेस्चर करता है जिसके वजह से किसी की रिलीजियस फीलिंग इंज्योर हो, तो जो कोई ऐसा करेगा उसको सेक्शन 298 में 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। So this offense is also non-cognizable one, bailable one, triable by any magistrate, compounded by the person whose religious feelings are intended to be wounded. तो जिस पर्सन की भी रिलीजियस फीलिंग इंज्योर हुई होंगी वही इस ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, अदखल पात्र है, इसमें बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल हो जाती है और कोई भी मैजिस्ट्रेट इस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। सो दीज आर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।